नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। 2017 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाली हमामा मरियम को जिद्दा में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल में अहम जिम्मेदारी दी जाने वाली है। हमामा मरियम रिटायर्ड IPS ऑफिसर और रियासती महकमा खलीद तैमूर के मुशीर AK खान की बहू और तेलंगाना कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले IAS ओहदेदार अब्दुल मुजम्मिल खान की बीवी हैं। हमामा मरियम फिलवक्त फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस के हिंदुस्तानी सफारत खाने पर तैनात हैं। सऊदी अरब में केरला और हैदराबाद के बाशिंदों की अक्सरियत है, चुनांचे हुकूमत उन्हें सऊदी अरब रवाना करने पर गौर कर रही है। खुद हमामा मरियम का ताल्लुक केरला के कोझिकोड से है। उन्होंने दिल्ली के राजमास कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अपने आबाई शहर के कॉलेज में अंग्रेज़ी की लेक्चरर भी रह चुकी हैं। 2017 के पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए उन्होंने 28वां मुकाम हासिल किया था। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सात्या नाडेला के वालिद BN योगेंद्र का देहांत हो गया। वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। उन्होंने हुकूमत आंध्र प्रदेश में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम सुवांग ने आज मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत नए पुलिस स्टेशन के साथ साथ मुलाजिमीन के लिए मकानात भी तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये काम अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। First time the outsourcing employees have been given an insurance scheme of 25 lakhs. This is the first initiative, and I must say that it is a very noble initiative taken by the VC/MD of Police Housing Corporation, Sunil Kumar IPS. We really appreciate the initiative because any organization, every organization comprises of its employees, and if the employees are taken care of, I'm sure that organization will strive and prosper. And AP Police Housing Corporation has already increased its performance, that whole turnover, by 7 times, from 200 crores to about 1200 crores, and that is surely because of the initiative of Sunil Kumar. So that's also very appreciative. We are very appreciative of him, and we are very proud of the Police Housing Corporation. ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి మీ వైపు రెఫరెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఏదండి మీ వైపు నుంచి ఇతర శాఖ చాలా మంది చాలా బిల్డింగ్స్ వస్తున్నాయి ఇతర శాఖలకు మీ వైపు నుంచి రెఫరెన్స్ చేసి actually the first priority is police infrastructure. The police infrastructure will be given the priority, but at the same time capacity ఉంటే ఇంకా వేరే వర్క్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అది సో ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వర్క్స్ అది కూడా ఆ కెపాసిటీ అక్కడే దే కుడ్ నాట్ కంప్లీట్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. వన్ థింగ్ అబౌట్ ద పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ దే ఆర్ వెరీ టైమ్ బౌండ్. పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది, క్వాలిటీ బాగుంది, తర్వాత టైం బౌండ్గా వాళ్ళు డెలివర్ చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నౌ ఎ వెరీ సాట్ ఆఫ్టర్ కార్పొరేషన్. And after Sunil has taken over, it has really improved his performance. ఇప్పుడు R&D కూడా చేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు లాగా కాదు. మెటీరియల్ R&D చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఎలాంటిది మెటీరియల్ మిక్సింగ్, తర్వాత మెటీరియల్ యూసేజ్ డిజైన్లో. సో అలాంటిది కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ అండర్టేకెన్. స్టేట్ మొత్తం చూస్తుంది 144 ఇంకా ఉందా సార్? ఇక్కడ 144 144 ఇస్ ఈ గణేష్ నిమజ్జనం అండ్ దెన్ మొహరం ఫెస్టివల్ ఎప్పటి వరకు ఉన్నారు అప్పటి వరకు లాగా ఉంది అక్కడ. బాధ్యత అందరూ పంపించేశారు కదా. అంటే కొందరు నిన్న వెళ్తేప్పుడు అంటున్నారు మొన్ననే తీసుకువచ్చారని, కొందరిని తీసుకువచ్చారు. ఒకరోజు ముందు మనం అన్నాము ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కూడా పోయి వెరిఫై చేయాలని. సో అది తర్వాత కూడా చాలామంది వచ్చారంటున్నారు. అదే ఇందాక చెప్పినలాగా అదే మన బాధ్యత, ప్రభుత్వందే బాధ్యత. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ ఎనీ సపోర్ట్, ఎనీ హెల్ప్, ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్, వీఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ అవర్ డ్యూటీ, యాజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనకు కూడా చాలా స్పష్టంగా
ఈ ఆదేశం has been given by our government, by the CM, by the Home Minister. ఇలాంటిది ఎక్కడే ఎనీవేర్ if they want any security, safety, we should be available. On the same lines ఈ స్పందన అని ప్రోగ్రామ్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ప్రతి పోలీస్ స్టేషను, ప్రతి ఇన్స్పెక్టర్ సర్కిల్ ఆఫీసు, డిఎస్పీ ఆఫీసు, ఎస్పీ ఆఫీసు, కలెక్టరేటు, ఎనీబడి కెన్ గో అండ్ సీక్ సపోర్ట్, సీక్ ఆ గ్రీవియాన్స్ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడడం అవకాశం సామాన్య ప్రజలకు అలాంటి అవకాశం ఇచ్చాను ఈ ప్రభుత్వం. కాబట్టి ప్రొటెక్షన్ లేదు, సేఫ్టీ లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు అంటే అది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. అది అందరికీ తెలుసు. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బాధితులకి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కానీ భరోసా ఇవ్వనందుకే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి పునఃసాకంగా వచ్చారు. అంటే పోలీసు నుంచి ఒక సరైన స్పష్టత రావట్లేదు అనేది ఒక అది చెప్పటము, అనుకోవడము, మాట అట్లా, కానీ పరిస్థితి అట్లా కాదు. మార్పులు ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి ఇప్పుడు కొత్త విధి విధానాలు కూడా పెట్టారు, కొత్త ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. స్పందన లాగా మన అవుట్ రీచ్, ఈ మెసేజ్ అందరూ చోట వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఈ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు వచ్చి పోలీస్తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వడం, తగిలిన తర్వాత వాళ్ళు ఆలోచన మారిపోతుంది. సో నిన్న కూడా అక్కడ ఏది మన వైన్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్లో అక్కడ అందరూ పెట్టారు. అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. సో కావాల్సింది అదే, వాళ్ళు అక్కడ పెట్టడం అని కాకుండా మనం అవైలబుల్ ఉన్నాం, మన దగ్గర రండి, మనం కూడా అలాంటిది ఎక్కడన్నా సమస్యలు ఉంటే చెప్తే మన వాళ్ళు వెళ్తారు. అది మన బాధ్యత. పోలీస్ పరంగా అక్కడ చర్యలు ఎట్లా ఉన్నాయి సార్? ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇష్యూ అయిందో అది ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఆ వాతావరణం కొద్దిగా టెన్షన్, అక్కడ టెన్షన్ ఫీల్ అయినారు. అది కరెక్టే. అది ప్రతిసారి ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఈ 2 వర్గాలు ఉంటారు, 3 వర్గాలు. ఎలక్షన్ కాకుండా, పొలిటికల్ కాకుండా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో అది ఎలక్షన్ సమయంలో కొద్దిగా ఈ అట్మాస్ఫియర్ కొద్దిగా చార్జ్ అయిపోతుంది. అది నార్మల్లీ తర్వాత మనం రియాక్ట్ అయ్యి మనం ఈ శ్రద్ధ చెప్పటము, మన ఇంటర్వ్యూని అవ్వడము, ఈ బోత్ పార్టీస్ని పిలిపించడము, మాట్లాడము, అలాంటిది విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ. సార్, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెన్నాయుడు పోలీసు యూజ్లెస్ ఫెలో ఉన్నారు, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అలాగే నన్నపనేని రాజకుమారి దళిత ఎస్ఐ మీ వల్ల ఎట్లా జరుగుతుందని ఒక ఎస్ఐని దుర్భాషలాడారు. చింతమనేని హౌస్ లో కానిస్టేబుల్ కూడా లోపల పెట్టేసి నిర్బంధించే పరిస్థితి. వాళ్ళపైన యాక్షన్ ఇప్పుడు మీరే విట్నెస్గా ఉన్నారు. పోలీస్ అంటే, పోలీస్ శాఖలో ఇలాంటి డిఫికల్టీస్ మనం ఫేస్ చేసి ఎదుర్కొని సమాజం సేవలు చేయాలి. పోలీస్ వ్యతిరేకంగా చెప్పడము, పోలీస్నే ఏమంటారు అబ్యూజ్ చేయడము, అలాంటిది కరెక్ట్ కాదు. కానీ ఐ ఆల్సో రియలీ అప్రిషియేట్ మన ఆఫీసర్స్, మన సిబ్బందులు, వాళ్ళు కూడా చాలా ఓపికతోని చాలా టాలరెన్స్ ఎగ్జిబిట్ చేశారు. కానీ ఒకవైపు నుంచి మనం కూడా ఇది వీ విల్ ఆల్సో బి టేకింగ్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇట్. కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి, మన యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాలని. ఇది ఒక टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जिन्होंने हाल ही में चैंपियनशिप का एजाज हासिल किया, आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी से रियासती सेक्रेटरीट में मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने सिंधु के खेल की खूब सितारिश की। इस मुलाकात के मौके पर सिंधु के वालिदीन, रियासती वजीर स्पोर्ट्स एम श्रीनिवास राव और आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अहदेदार भी मौजूद थे। सिंधु रियासती गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात के लिए विजयवाड़ा भी जाएंगी। सिंधु ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि उसे वैजाग में अराजी अलाट की जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियन के इंतखाबात में बीजेपी से मुल्का तंजीम ABVP ने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 4 के मुंजमला 3 अहमदों पर कब्जा जमा लिया है। इनमें सदर, नायब सदर और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे शामिल हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि TRS के कई अरकान असम्बली और कायदीन की बीजेपी में इम्कानी शमूलियत की इत्तलात के बाद हुक्मरान जमात के खेमे में कोहराम मच गया है। रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जी परमिंदर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि TRS ने खुद एक ज़माने में इनराफ की सियासत की हौसला अफजाई की थी और अब उसे इसका मजा चखना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं, TRS को इससे क्यों परेशानी हो रही है। परमिंदर रेड्डी ने कहा कि TRS के कायदीन की बीजेपी में शमूलियत की ख्वाहिश से मालूम होता है कि TRS से कोई भी खुश नहीं है। अब पार्टी के अरकान असम्बली और कायदीन पर KCR का कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी 17 सितंबर को रियासत में तेलंगाना दिवस मनाएगी और पटनचेरू में एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी की तेलंगाना विमोचना कमेटी के सदर N श्रीवर्धन रेड्डी और कन्वीनर स्वामी गौड़ भी मौजूद थे। डर रहे इनके खुद MLAs को, एक्स मिनिस्टर्स को, इनका पार्टी वाला को डर रहे। अरे कुछ लोग बाहर आके इनके खिलाफ बात कर रहे, मगर इनके लिए एक दिन के बाद उसी दिन रात को जाके कुछ उनको वादा करके फिर उनसे दूसरा स्टेटमेंट देने के लिए कोशिश कर रहे। क्यों ऐसे हो रहे? इसके नेता के ऊपर, इसके पार्टी के ऊपर इनका खुद लोगों के विश्वास कम हो रहे। कितने दिन, कितने महीने आप इन लोगों के लिए ये जबरदस्ती करके इनके पार्टी में रखेंगे? ये जनता देखेंगे। आपका खुद वादा किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिला के बारे में बोल के अभी झूठा बोल रहे, इसीलिए आपके खुद लोग ऐसे बात कर रहे। और एक प्रधान विषय है 17 सितंबर 1948 को इस निजाम सरकार से विमुक्त हो गया तेलंगाना का एरिया, तेलंगाना का प्रांत। मगर उस दिन ये स्वतंत्र दिनोत्सव का तिरंगा को फहराने के लिए क्यों डर रहे? मजलिस के कारण, मजलिस नेता के कारण, आप वोट बैंक के कारण, केवल सत्ता के लिए आप ऐसे कर रहे। अरे क्या चित्र है जी। आप दोनों समझौता करके पिछले असेंबली चुनाव में लड़ा हुआ, खुद मुख्यमंत्री जी TRS का अधिनेता बताया था मजलिस हमारा मित्र पक्ष बोल के। अभी असेंबली उनको विपक्ष का नेता कैसे बनेगा, कैसे रहेगा, कैसे बात करे? अरे तेलंगाना जनता को आप बहुत अवमान कर रहे, इंसल्ट कर रहे आप। क्यों ऐसे कर रहे? केवल वोट बैंक के, केवल मजलिस से ये समझौते के कारण, पूरा सत्ता के लिए ऐसे कर रहे। हम छोड़ते नहीं जब तक ये 17 सितंबर को हर एक पूरा गोलकोंडा के किले ऊपर
हमारा तिरंगा फहराने तक, पूरा तेलंगाना में फहराने तक हम ये लड़ाई चलाएंगे। इसके हम प्रोग्राम करेंगे और 17 के सुबह हर एक पोलिंग बूथ में तिरंगा फहराएंगे और 10 से 12 बजे तक म्यूनसिपालिटीज में और मंडल हेडक्वार्टर्स में, जिले हेडक्वार्टर्स में तिरंगा यात्रा नाम के ये मोटर बाइक रैली निकालेंगे। उस दिन 2 बजे पठान चेरू में आम बहिरंग सभा पब्लिक मीटिंग हम ये डिमांड से 17 सितंबर को मानना है। और जब ये शहीद हो गए उनका हिस्ट्री ये बच्चों का और स्कूल में बुक्स में आने के लिए, हिस्ट्री बुक्स में आने के लिए यही है हमारा डिमांड। दूसरा है जहाँ शहीद हो गया उसी जमीन में, उसी एरिया में ये अच्छा ये स्मृति मंदिर बनाने के लिए हमारा डिमांड है। ये डिमांड के लिए कभी भी कब तक भी हम ये लड़ाई चलाएं। सवारी बात है, अगर ये एहतजाज आप लोग करेंगे इस दौरान, अगर थैंक यू। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर में गणेश विसर्जन के पुरअमन अख्ताम पर आवाम के अलावा गणेश मंडलियों, पुलिस के तमाम अहलकारों और हुकूमत की मुख्तलिफ एजेंसियों और मीडिया से ज़ाहिर तशक्कुर किया। अपने एक बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि उन सब के ताउन के बगैर ऐसे बड़े इज्तिमा या इवेंट का खुशगवार इनेकाद नामुमकिन था। हैदराबाद को पुरअमन, पाक-ओ-साफ और खूबसूरत शहर बनाने में हर इदारे और आवाम के तमाम तबकात का अपना रोल होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस के मुलाजिमीन ने जिस फ़र्ज़शनासी और जानफिशानी से काम लिया है वो नाकाबिल फरामोश है। हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक कल्चरल कैपिटल की तरह से इमर्ज हो रहा है। पिछले 15 दिनों में एक तरफ सिख रिलीजन का बहुत बड़ा फेस्टिवल महाप्रकाश पूरब यात्रा जो गुरु नानक देव जी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया गया, वो एक बहुत बड़ा बंदोबस्त रहा। उसके बाद हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो मुहर्रम का मातम किया उसमें भी हम लोग शरीक हुए और सिटी पुलिस के तरफ से सभी बंदोबस्त किए गए। और अब आज सुबह गणेश निमज्जनम का महायज्ञम कंप्लीट हुआ जो कि पिछले 10 दिनों से चल रहा था और हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक लगभग 22,000 से ज़्यादा आइडल्स केवल टैंक बंड के पास निमज्जनम हुआ। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, रिव्यू मीटिंग और सबसे बड़ी बात है पब्लिक कोऑपरेशन, इसके साथ हम लोग हर रोज़ आगे बढ़ रहे थे। इस बार गणेश का सबसे बड़ा नया चीज़ यह रहा कि पब्लिक कोऑपरेशन इतना बेहतर आज के पहले शायद कभी नहीं था। 10,000 लोगों से ज़्यादा अपने आप को गणेश वॉलेंटियर्स के रूप में रजिस्टर कराए और एक पुलिस ऑफिसर की तरह 3 शिफ्ट में वो लोग ड्यूटी किए, प्लानिंग के स्टेज से, उसके बाद इंस्टॉलेशन के स्टेज से, फिर प्रोसेशन जब शुरू हुआ और लास्ट में निमज्जनम। हर समय हाथ में हाथ मिलाकर हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स और वॉलेंटियर सब काम किए। इस मौके पे मैं सबको और सबसे पहले हैदराबाद के कम्युनिटी, सभी सिटीजन्स को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, सिटी सिक्योरिटी विंग, टास्क फोर्स, सभी ऑफिसर ने बहुत मेहनत किया और हम लोग सब उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने टीआरएस छोड़ने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ना तो पार्टी छोड़ने का और ना ही बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा है। शकील आमिर ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर कामिल ईमान रखते हैं और गुज़िश्ता 15 बरस से पार्टी से वाबस्ता हैं। उन्हें पार्टी ने 2 मरतबा बोधन से असम्बली का टिकट भी दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि उन्हें काबीना में शामिल न किए जाने पर अफसोस है, लेकिन तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुनासिब वक्त पर उन्हें काबीना में शामिल करेंगे या फिर किसी अहम कारपोरेशन का सदर बनाएंगे। वाज़ेह है कि शकील आमिर की कल निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में ये खबर फैल गई थी कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं।
आज सुबह से जो सोशल मीडिया में टीवी में न्यूज़ वायरल हो रही कि शकील आमिर साहब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे बोल के, इसकी सरासर जो है ये गलत न्यूज़ है। और इस तरीके की न्यूज़ें डालना ये बहुत ही गलत बात है। ना मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हूँ, ना इस बारे में डिस्कशन चला। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज टीआरएस के साथ केसीआर साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से 2 बार 3 बार टिकट दिए, 2 बार एमएलए बने, आवाम की खिदमत कर रहे। एक अखिलती दोस्त है केसीआर के चाहने वाले हैं हम, क्योंकि केसीआर एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा ज़िंदगी भर केसीआर साहब के साथ हमारी ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी। आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज़ है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, ज़रूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा। और केसीआर साहब पे भी मेरे को पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो है वक्त के हिसाब से जो चीज़ करना है उनको अच्छी तरीके से मालूम है और वो मेरे साथ ज़रूर इंसाफ करेंगे। ऐसी कोई नाराज़गी मेरी पार्टी के साथ नहीं है, ना टीआरएस पार्टी से है, ना केसीआर साहब से है। ये सब गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। तेलंगाना बीजेपी ने रियासती असेंबली की पीएसी कमेटी की सदारत मजलिस को सौंपने पर शदीद एतराज़ किया और सवाल किया कि टीआरएस असेंबली में मजलिस को किस तरह अपोजिशन जमात का दर्जा दे सकती है, जबकि दोनों एक दूसरे की हलीफ जमात होने का दावा करते हैं। जनरल सेक्रेटरी बीजेपी परमिंदर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में खुद अपनी एक नज़ीर है जहां एक हलीफ जमात को अपोजिशन जमात का दर्जा दिया जा रहा है। अपोजिशन का काम हुकूमत के गलत कामों पर तनकीद करना और उसके गैर कानूनी इक़दाम की मुखालिफत करना होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन की कुर्सी पर बैठने वाली जमात हुकूमत की खसीद खानी करती है। ये जमहूरियत के साथ सबसे बड़ा मजाक है। दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक के साबिक वजीर डीके शिवकुमार की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया और उनकी अदालती तवील में तोसी दे दी। वाज़ेह है कि 3 सितंबर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। शिवकुमार के वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की सेहत खराब हो रही है और उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अदालत ने उनकी एक भी नहीं सुनी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल और राजस्थान के नए गवर्नर कलराज मिश्रा ने आज नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात खैर सिगाली थी। दिल्ली के नवाई इलाके बख्तावरपुर में गणेश विसर्जन के दौरान 4 अफराद गुरखाब हो गए। आज उन तमाम की नाशियां बरामद कर ली गई। दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। यह हादसा कल रात 9 बजे पेश आया था। दुबई एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक हिंदुस्तानी वर्कर एक मुसाफिर के बैग से दुआम चुराने के इल्जाम का सामना कर रहा है। गल्फ न्यूज के मुताबिक 27 साल नौजवान ने इतराफ किया कि वो प्यासा था और पानी की तलाश में था। उसने जब एक मुसाफिर के बैग खोला तो उसमें 2 आम पाए गए थे, चुनाचे वो उन्हें खा गया। हिंदुस्तानी वर्कर पर 6 दरहम मालियाती फल की चोरी का इल्जाम है। ये वाकया बहुत पुराना है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल के दौरान इसका पता चला। मुलजिम की सजा से मुतालिक फैसला 23 सितंबर को होगा। उसे कैद की सजा भी हो सकती है या फिर मसरूखा आम की कीमत अदा करने को कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान एक अलमनाक हादसे में 11 अफराद गुरखाब हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इरशाद वली ने बताया कि वाकया भोपाल के लोअर लेक में आज अलग सुबह पेश आया। उन्होंने बताया कि 6 अफराद को बचा लिया गया। जिला कलेक्टर पी तरुण कुमार ने इस वाकये की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बताया जाता है कि 17 अफराद 2 किश्तियों में सवार काटलापुरा तालाब में मूर्तियों का विसर्जन कर रहे थे। इब्तदान एक कश्ती गुरखाब हुई तो दूसरी कश्ती में सवार लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और चुनाचे फिर दोनों कश्तियां गुरखाब हो गई। पुलिस और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने फौरी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया।
जिला कलेक्टर ने महलूकिन को फीकस 4 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का भी ऐलान किया है। रियासती वजीर इत्तलात पीसी शर्मा भी मकाम वाक़ा पर पहुंच गए। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आइंदा तालीमी साल से अपने स्कूलों में पहली जमात से 8वीं जमात तक अंग्रेजी की तालीम देने 70,000 टीचर्स को तरबियत देने का फैसला किया है। मौके में तालीम के जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने बताया कि असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को हर साल जनवरी में ही पूरा कर लिया जाएगा और तुलबा टीचर का रेशियो बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि हर मंडल में एक जूनियर कॉलेज हो और हर असम्बली में एक डिग्री कॉलेज कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने स्कूलों के तालीमी मियार को बेहतर बनाने औलिया तुलबा के तजावीज़ पर भी गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। एनसीपी के रुकने पार्लियामेंट और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर शरद पवार की दुख्तर सुप्रिया सोले ने बताया कि सेंट्रल रेलवे के दादर टर्मिनस पर एक कैब ड्राइवर ने उन्हें हिरासा किया। रेलवे पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक सुप्रिया पोली ने बताया कि कैब ड्राइवर कुलजीत सिंह मल्होत्रा उनके ट्रेन के डब्बे में घुस आया और टैक्सी खिदमत लेने के लिए इसरार करने लगा। उनके इनकार के बावजूद वो मुसलसल उन पर दबाव डाल रहा था और उनके साथ फोटो लेने की भी कोशिश की। इस वाक़े पर बरहम सुप्रिया सोले ने वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल को भी ट्वीट के जरिए इस वाक़े की इत्तला दी और सवाल किया कि क्या किसी को भी ट्रेन स्टेशन पर घुस आने की इजाज़त दी जा सकती है। रेलवे पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए ड्राइवर मल्होत्रा का पता चला लिया और उसके खिलाफ कई दफात के तहत केस बुक किए और जुर्माना भी किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई डिवीजन के कमिश्नर के अशरफ ने बताया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अब कड़े इक़दाम किए जाएंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जानिब से दिल्ली में 4 और 15 नवंबर के दरमियान ऑड और इवन स्कीम पर दोबारा अमल दरामद करने के ऐलान के चंद घंटों बाद ही वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने उसे फजूल करार दिया और कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल का दावा है कि इससे आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। नागपुर में एक सीएनजी आउटलेट का इफ्तिताह करने के बाद सहीफे निगाहों से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में तामीराती काम जारी है और अंदरून 2 साल शहर को आलूदगी से पाक कर दिया जाएगा। दिल्ली के अतराफ रिंग रोड तामीर किए गए हैं और इससे दिल्ली में आलूदगी को कम करने में बड़ी हद तक मदद मिली है। चुनाचे अब ऑड और इवन की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत सड़कों की तामीर, यमुना को साफ करने और आलूदगी पर काबू पाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए सर्फ कर रही है। नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो नया रिंग रोड बनाया उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी कम हुआ है और मेरे अंदाज से हम 2 साल के अंदर जितने 50,000 करोड़ के रोड मेरे विभाग से बन रहे हैं। यमुना जल शुद्धिकरण और वायु शुद्धिकरण दोनों की योजनाएं चल रही है। 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, उनका फैसला तो वो कर सकते हैं। सुझावों के आधार पे और ये चर्चा के आधार पे हम लोगों ने 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है जिसको हम लोग पराली प्रदूषण एक्शन प्लान बोल रहे हैं। पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान है। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। 4 नवंबर से 2 और 3 को सैटरडे संडे है। 4 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। ये केवल एक इमरजेंसी मेजर होता है। तो चूंकि वो एक इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है जब पराली का धुआं के पूरे गैस चैम्बर की तरह पूरे आसमान पे छा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।